Dear students, today we are going to start chapter 3, Maths part 2, Indefinite Integration, exercise 3.2. Question number 1, integrate the following with respect to x. Now see question number 7. Let I equal to integral of e raised to x into log of sin e raised to x upon tan e raised to x into dx. So according to integral rule, first we think substitution. For the substitution, which term will be substituted here, so we get remaining term. Put log sin e raised to x equal to t. Differentiating with respect to x on both sides. Since derivative of log of x, consider as x this term. Since derivative of log of x is 1 by x, so derivative of log of sin e raised to x is 1 upon sin e raised to x into d by dx of sin e raised to x by composite function. So derivative of sin e raised to x is cos e raised to x. Again by composite function, derivative of e raised to x is e raised to x. Equal to derivative of t is dt upon dx. After that, it is 1 upon sin into cos of e raised to x, right? So cos e raised to x upon sin e raised to x becomes cot e raised to x. So you know that cot x is 1 upon tan x, right? Means cot e raised to x can be written as 1 upon tan x. It is into e raised to x. So 1 into e raised to x is e raised to x upon tan e raised to x. See once again this term. 1 into cos e raised to x upon sin e raised to x. That is cos e raised to x upon sin e raised to x becomes cot e raised to x, and its reciprocal is 1 upon tan e raised to x. So e raised to x upon tan e raised to x. Cot e raised to x into e raised to x can be written as e raised to x upon tan e raised to x into dx equal to dt, taking dx on the left hand side. This dx taking in the left hand side. So now substitution step completed here. Substitution term is log of sin e raised to x equal to t, and its derivative and its simplest form equal to e raised to x upon tan e raised to x into dx equal to dt. So we see that e raised to x, now see this integral part, e raised to x in upon tan e raised to x, this term, this one, e raised to x upon tan e raised to x, this one, and into dx, this one, becomes dt, only dt. And we have substituted log sin e raised to x is t. So therefore our integral becomes I equal to integral t into dt. And integral of t into dt is very simple, t square upon 2 plus c, where c is constant of integration for all the questions. So this is t square upon 2. Now we should resubstitute the value of t, which is log of sin e raised to x. So I can be written as half into log of sin e raised to x the whole square plus c. This upon 2 as half here, and the t square means value of t log of sin e raised to x whole square plus constant of integration here. So this is final answer for question number 7. Now see question number 8. Let I equal to integral e raised to 2x plus 1 upon e raised to 2x minus 1 into dx. So for this type of the integration, first we think derivative of the numerator is not equal to denominator, and derivative of denominator is not equal to numerator, means there is no direct substitution. So for this type of the question, if both are exponential and their sign just opposite, so we should divide by half of that power. Half of that power. What is half of 2x? X only. So dividing by e raised to x in numerator and denominator. Dividing by e raised to x in numerator and denominator. So e raised to 2x upon e raised to x, right? E raised to 2x upon e raised to x becomes e raised to 2x minus x, means 1 power subtracted.
So remaining power is e raised to x only, plus 1 upon e raised to x is e raised to minus x, upon e raised to 2x upon e raised to x is e raised to x, minus 1 upon e raised to x is e raised to minus x. So I equal to e raised to x plus e raised to minus x upon e raised to x minus e raised to minus x into dx. So after dividing by e raised to x in numerator and denominator, we get this step. Now see here, derivative of the denominator is numerator, so we should put denominator as t. So put e raised to x minus e raised to minus x equal to t. Since differentiating with respect to x, the derivative of e raised to x equal to e raised to x minus, as it is, derivative of e raised to minus x is minus e raised to minus x into dx equal to dt. Actually here it is dt by dx, we are taking dx on left hand side. So we get into dx equal to dt. Now it's the simplest form, e raised to x minus into minus plus. So e raised to x as it is, minus minus plus into e raised to minus x whole dx equal to dt. So we get e raised to x plus e raised to minus x into dx equal to dt. Now our question means we see this term here, this is t considered, and this into dx means numerator into dx is dt. So I equal to integral of 1 upon t into dt, because denominator is t. Now see this, denominator becomes t and numerator into dx becomes dt. So it can be written as dt upon t, or you can say 1 upon t into dt, right? Both have same meaning. So integral of 1 upon t into dt. What is integral of 1 by t? It is very simple formula. Integral of 1 by t dt is log of mod of t plus c. Log t plus c, or log of bracket t plus c, log of t plus c, or log of mod of t plus c. You can write any one out of three answers. But what is value of t? Now see, value of t is this, t equal to e raised to x minus e raised to minus x. So after integration, we should resubstitute the value of t. After integration, we should resubstitute the value of t. Therefore, I equal to log mod e raised to x minus e raised to minus x modulus closed plus c. C is constant of integration. So this is the very important question. Suppose इसी question में यहाँ पर हमने 3x लिख दिया, 3x and 3x, तो क्या करोगे? Yes, anyone student? Okay. Dividing by e raised to 3x upon 2 in numerator and denominator. Suppose powers are even, 2x, 4x, 6x, so you can divide by half of that term. If powers are odd, so you should divide by that term upon 2, like 3x, 5x, 7x, or only x, etc. So you can integrate this type of the integral easily by dividing e raised to x in numerator and denominator. And this type of the questions are very important for board exam pattern, CET or JEE. Now see next one, your next question is very simple question. Ninth, let I equal to integral of sine raised to 4x into cos cube x into dx. So integral of sine raised to 4x into cos cube x can be written as cos square x into cos x. We break it simply as cos square and cos. Sine raised to 4x as it is. So I equal to integral sine raised to 4 into cos square x into cos x into dx. Now cos square x can be written as 1 minus sin square x, because an identity sin square x plus cos square x equals 1. Now we see that whole question, whole integral converted sin raised to 4x into 1 minus sin square x into cos x dx. Now, after this step, think about substitution. If we substitute
sin x, put sin x equal to t. If we put sin x equal to t and differentiating with respect to x on both sides, so derivative of sin x is cos x equals dt by dx. So taking dx on the left hand side, therefore cos x into dx equal to dt. And we have here cos x into dx, means this term becomes dt after substitution. Cos x into dx becomes a dt. See very carefully and understand seriously. Cos x dx equal to dt. Sin x, here we have substituted sin x as t. So each sine term converted in terms of t. So sin raised to 4 becomes t raised to 4. 1 minus sin square x is 1 minus t square, and it is already converted in dt. Here you can check cos x into dx equal to dt. So therefore integral means I equal to integral of t raised to 4 into 1 minus t square into dt. After that, what should we do? T raised to 4 multiplied by 1. So t raised to 4 into 1 becomes t raised to 4. Minus t raised to 4 into t square becomes t raised to 6. Bracket closed, dt. So integral of t raised to 4, so using x raised to n dx formula, integral of x raised to n dx is x raised to n plus 1 upon n plus 1. Very simple. So it can be written as, means integral of t raised to 4 dt equals t raised to 5 upon 5 minus t raised to 6 dt is t raised to 7 upon 7 plus c. क्या करना है हमें? Plus 1 means increase the power by 1 and divide the same power in the same term. So we get t raised to 5 upon 5 minus t raised to 7 upon 7 plus c, which is constant of integration. So it is integrated, but value of t, we want our answer in terms of x. So value of t is sin x. So I equal to sin raised to 5 x upon 5 minus sin raised to 7 x upon 7 plus c, means substituting the value of t, or you can say resubstituting the value of t. So therefore I equal to 1 upon 5 into sin raised to 5x minus 1 upon 7 into sin raised to 7x plus c. Clear? Okay. So you have completed question number 9, and its answer is 1 upon 5 into sin raised to 5x minus 1 upon 7 into sin raised to 7x plus c. Now see question number 10. Let I equal to integral of 1 upon 4x plus 5x raised to minus 11 into dx. तो यहाँ पर सबको याद करना चाहिए कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें वेरिएबल सिर्फ डिनोमिनेटर में दिया गया और न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो उसे हमें या तो उसी टर्म से कुछ एडजस्ट करके लेना पड़ेगा, जैसे डिवाइड करके, या अगर इनका पावर नेगेटिव है जैसे इस क्वेश्चन में है, तो पहले हम लोग सीरियसली इसी क्वेश्चन को देखते हैं. अगर डिफरेंट टाइप का जहाँ क्वेश्चन आएगा, आई विल एक्सप्लेन फॉर दैट क्वेश्चन. तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 4x प्लस 5x रेज टू माइनस 11 इंटू डी एक्स. तो ये टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट को लगता है कि क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसके पावर बिगर है और नेगेटिव भी है. तो हम लोग सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें कि जो नेगेटिव पावर दी है उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट. तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करोगे? एक्स रेज टू माइनस 11 है तो इसको 1 अपॉन एक्स रेज टू 11 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पावर. मीन्स आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 4x एज इट इज, नो चेंज, प्लस 5 अपॉन एक्स रेज टू 11. जो एक्स रेज टू माइनस 11 can be here 5 into x raised to minus 11 can be written as 5 upon x raised to 11 into dx. तो dx क्या रिप्रेजेंट करता है? विथ रिस्पेक्ट टू x, मीन्स इंटीग्रेट दिस क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू x. तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल. अब देखो इसमें कैसा चेंज हुआ? x रेज टू 11 अपॉन 4 x रेज टू 12 प्लस 5. हाउ? बट हाउ इट इज? देखो x रेज टू 11 इंटू 4x,
means x into x raised to 11 becomes x raised to 12. So this will be 4x raised to 12 plus 5 एंटायर अपॉन 11 हो जाएगा और वही 11 रेसिप्रोकल होके आ जाएगा न्यूमरेटर में यहाँ पर। यहाँ देखो तो I इक्वल टू इंटीग्रल x रेज टू 11 अपॉन 4x रेज टू 11 सॉरी 4x रेज टू 12 प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो जैसे ही हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यू कैन से सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर एंड टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल, so we get integral x raised to 11 upon 4x raised to 12 plus 5। क्योंकि x raised to 11 जैसे यहाँ पर इंटू करोगे तो ये आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर क्या होगा न्यूमरेटर में होगा, तो x raised to 11 अपॉन 4x raised to 12 प्लस 5 इंटू डी एक्स। बहुत ही सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, अब इसके बाद हम देखते हैं कि 4x रेज टू 12 प्लस 5, तो पुट 4x रेज टू 12 प्लस 5 इक्वल टू टी और देखते हैं क्या इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर को एडजस्ट कर पाता है या नहीं कर पाता। तो चलो नाउ वी स्टार्ट, पुट 4x रेज टू 12 प्लस 5 इक्वल टू टी, differentiating with respect to x on both sides. So 4 as it is, derivative of x raised to 12 is 12 into x raised to 12 minus 1, that is 12 into x raised to 11 plus as it is derivative of a constant term, that is derivative of 5 is 0 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होगा। और वो डी एक्स को मैं हमेशा क्या करता हूँ लेफ्ट साइड में पहले लिख लेता हूँ जिससे कोई मिस्टेक ना हो, इक्वल टू डी टी। ठीक है, ये ध्यान देने की बात है कि जब भी इंटीग्रेशन करोगे और वहाँ सब्स्टिट्यूशन आएगा तो वहाँ हमें मोस्टली डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ता है। तो जब भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ध्यान देना कि डेरिवेटिव का फार्मूला यूज करना, और जब फिर से इंटीग्रल साइन आ जाएगी इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज करना। समटाइम्स होता क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स सॉल्व करते 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 इतने फास्ट सॉल्व कर देते हैं कि डेरिवेटिव का फार्मूला इंटीग्रेशन में और इंटीग्रेशन का फार्मूला डेरिवेटिव में, तो ये नहीं करना है। ये ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि ये स्टेप जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ से, तो ये इतने स्टेप्स हमारे यहाँ पर डेरिवेटिव के स्टेप्स होते हैं। ओके, फिर से एक बार देख लो, 4 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 12 ये 12 इंटू एक्स रेज टू 11 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 इज 0 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये डी टी बाई डी एक्स का ही डी एक्स यहाँ लिखा गया है इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर देते हैं। Now 4 into 12, 48 into x raised to 11 into dx equal to dt. But we need only x raised to 11 into dx in the left hand side. So dividing by 48 on both sides. So x raised to 11 into dx equal to 1 by 48 into dt. Yeah, in other words you can say taking 48 on the right hand side. Simple. So x raised to 11 into dx equals 1 upon 48 into dt. तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एडजस्ट तो हो गया x रेज टू 11 इंटू डी एक्स इन द लेफ्ट हैंड साइड, ये इजीली एडजस्ट हो गया। तो x रेज टू 11 इंटू डी एक्स इज 1 बाई 48 इंटू डी टी। अब यहाँ पर देखो x रेज टू 11 इंटू डी एक्स, ये पार्ट सिर्फ इतना न्यूमरेटर और ये dx, ये हमारा हो गया 1 बाई 48 इंटू डी टी। तो डियर स्टूडेंट्स 1 बाई 48 इज कॉन्स्टेंट टर्म, इसका इंटीग्रेशन से कोई लेना देना तो रहेगा नहीं। तो जब भी हम इंटीग्रल में लिखेंगे इसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन के बाहर रख देंगे जिससे कोई डिस्टर्बेंस न ला सके। तो देयरफॉर I इक्वल टू 1 बाई 48 इंटू इंटीग्रल 1 बाई टी इंटू डी टी, 1 बाई टी इंटू डी टी इक्वल्स 1 अपॉन 48 एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी इज log ऑफ mod ऑफ टी प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 48 log ऑफ व्हाट इज वैल्यू ऑफ टी। अब टी का वैल्यू देख लो, रीसब्स्टिट्यूट करने का नंबर आ गया है 4x रेज टू 12 प्लस 5, 1 upon 48 as it is into log mod 4x raised to 12 plus 5 modulus closed plus c. So final answer therefore I equal to 1 upon 48 log of 4x raised to 12 plus 5 plus c, where c is constant of integration. ये लिखना कंपलसरी है, नहीं तो आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11। Let I equal to integral x raised to 9 into sec square x raised to 10 into dx. So simply we put x raised to 10 equal to t
derivative of x raised to 10 is 10x raised to 10 minus 1, that is 10x raised to 9 इंटू डी एक्स इक्वल्स डी टी। और ये देखो x रेज टू 9 यहाँ पर और dx यहाँ पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग 10 ऑन द राइट हैंड साइड, तो देयर फोर एक्स रेज टू 9 इंटू डी एक्स इक्वल्स 1/10 इंटू डी टी। देयरफॉर आई इक्वल टू 1/10 इंटू इंटीग्रल सेक स्क्वायर टी डी टी। देखो सेक स्क्वायर यहाँ पर है, हमने सिर्फ एक्स रेज टू 10 को टी लिया था, इतने ब्रैकेट टर्म को, तो सिर्फ यही टी होगा और ये एक्स रेज टू 9 इंटू डी एक्स क्या हो गया डी टी, और 1/10 जो एक्स्ट्रा आया था वो कॉन्स्टेंट है, तो 1/10 इंटीग्रल सेक स्क्वायर टी डी टी। अब ये देखना है कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर टी का फॉर्मूला क्या है, बाहर तो रहना चाहिए, यस ओके। So therefore I equal to 1/10 into integral of sec square t is tan t. Integral of sec square t is tan t plus c. Therefore I equals 1/10 into tan of x raised to 10. This is value of t जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ पर देख सकते हैं t equal to x raised to 10. So resubstituting the value here, so I equal to 1/10 tan x raised to 10 plus c. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीटेड। ये रहा इसका फाइनल आंसर और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इजीली कर सकते हो। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12। अब ये टाइप के क्वेश्चंस में बता दूं, जैसे भी लॉग भी है, नेगेटिव पावर भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, सब कुछ है, तो पहले हमें इनको इंडाइसिस रूल से सिंप्लीफाई करना चाहिए। पहले इंटीग्रेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है कि इंटीग्रेशन कैसे होगा। जैसे क्वेश्चन क्या है, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू 3 log x इंटू एक्स रेज टू 4 प्लस 1 होल रेज टू -1 इंटू डी एक्स। तो हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए कि हम पहले इसको इंटीग्रेशन के ही चक्कर में पड़ जाएं। सबसे पहले तो इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे सबसे पहले, और देखेंगे कि लॉग के भी क्या फार्मूले यूज हो रहे हैं इसमें। यस, 3 log x मीन्स n इंटू लॉग एम, तो n इंटू लॉग एम क्या होता है, लॉग एम रेज टू n। तो सबसे पहले इंटीग्रल के साथ साथ इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू log x cube means e raised to 3 log x can be written as e raised to log of x cube into x raised to 4 plus 1 raised to -1 into dx। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो log x cube होता है e raised to log x cube, अगर e और log e raised to log आता है तो सिर्फ हमारा यही टर्म रिमेनिंग रह जाएगा, बाकी एलिमिनेट हो जाते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम्स। तो सिंस ई रेज टू लॉग ए, जैसा मैंने यहाँ पर एक फार्मूला भी दे दिया है, देखो ई रेज टू लॉग ए इक्वल टू ए, ई रेज टू लॉग ए इक्वल टू ए, क्योंकि ये सब एक्सप्लेनेशन 11th स्टैंडर्ड में भी मिल जाएगी। हमारे 11th स्टैंडर्ड के लॉगरिथम चैप्टर्स का लेक्चर देख सकते हो, अगर लॉगरिथम में कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर रेफर कर सकते हो, समझ में आ जाएगा सब। तो ई रेज टू लॉग ऑफ ए इक्वल टू ए, तो दिस इज इक्वल टू, अब देखो ई रेज टू लॉग एक्स क्यूब बाई दिस फार्मूला ओनली एक्स क्यूब, और ये रेज टू -1 है टर्म, सेकंड टर्म, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए अपान में कर देते हैं, अपान एक्स रेज टू 4 प्लस 1 मीन्स इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो ई रेज टू लॉग एक्स क्यूब इज ओनली एक्स क्यूब, और इसको हमने क्या किया, एक्स रेज टू 4 प्लस 1 होल रेज टू -1 को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स अपान में लिख दो, डिनोमिनेटर में लिख दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 1 into dx since e raised to log a equal to a, this is formula for log and e relation। therefore अब आता है हमारा चांस सब्स्टिट्यूशन का। अब देखते हैं किसमें किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, तो पुट x रेज टू 4 प्लस 1 इक्वल टू टी, क्योंकि देखने से ही मालूम पड़ गया कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब इज सॉरी x रेज टू 4 इज 4x क्यूब 4 n x raised to n minus 1, 4x raised to 4 minus 1 that is 3, तो 4x क्यूब एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, या लिखोगे तो भी कोई उसकी वैल्यू नहीं है। तो देयरफॉर 4x क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज 1/4 डी टी, टेकिंग 4 ऑन दैट साइड। तो देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रल 1/4 इंटू 1/t डी टी, तो 1/4 को हमने बाहर रखा है, तो आई इक्वल टू इंटीग्रल 1/4 सॉरी आई इक्वल टू 1/4 इंटू इंटीग्रल
1/t dt और इंटीग्रल 1/t dt फार्मूला बहुत ही सिंपल है, इट इज इक्वल टू 1/4 log ऑफ t प्लस c. नाउ रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू 1/4, तो I इक्वल टू 1/4 log x रेज टू 4 प्लस 1 प्लस c. क्लियर? तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था देखने में, लेकिन आंसर और सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है इसका. तो I इक्वल टू 1/4 इंटू लॉग ऑफ x रेज टू 4 प्लस 1 प्लस c. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13. Let I equal to integral of root of tan x upon sin x into cos x into dx. So this is very important question for the JEE and other exams. Therefore, I equal to integral of root tan x as it is. In the denominator, multiplying and dividing by cos x. देखो एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर ले लिया मैंने, तो इट कैन बी रिटन एज sin x यहाँ पर है, तो हमने इसको sin x अपॉन cos x इंटू cos x इंटू cos x इंटू dx. क्या किया? मल्टीप्लाइंग and dividing by cos x in the denominator only. देखो न्यूमरेटर हैज नो चेंज, राइट? डिनोमिनेटर sin x अपॉन cos इंटू cos, डिवाइड भी किया मल्टीप्लाई भी किया, तो क्वेश्चन के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, इंटू cos x dx. So I equal to integral root tan x, here sin x upon cos x is tan x, cos x into cos x, cos square x into dx. अब ये देखना है कि रूट tan x अपॉन tan x क्या होता है. देखो सबसे पहले इसको देखो, रूट tan x अपॉन tan x इज रूट ऑफ tan x. जैसे रूट x अपॉन x, रूट x अपॉन x क्या होता है? 1/√x. तो वैसे ही रूट tan x अपॉन tan x इज 1 अपॉन रूट tan x. एंड हियर 1 अपॉन cos स्क्वायर x. अगर ये डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x का रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर x, तो क्या होगा? sec स्क्वायर x. तो ये जो डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर है, ऊपर जाके क्या बन गया? sec स्क्वायर x. और रूट tan x अपॉन tan x इज रूट tan x. तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल sec स्क्वायर x अपॉन रूट tan x इंटू dx. सिंस 1/cos x इज sec x, इसके लिए फार्मूला दिया गया है कि 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x. क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद देखो ये क्वेश्चन यहाँ से देखो और यहाँ से देखो, कितना डिफरेंस अभी दिखने लगा क्वेश्चन में. अभी तक हमने इंटीग्रेट नहीं किया, अभी सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन और ट्रिग्नोमेट्री का एडजस्टमेंट ही चालू है. ये I इक्वल टू इंटीग्रल रूट tan x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स. और यहाँ पर देखो वही क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके थोड़ा मॉडिफाई कर लिया, तो क्या हो गया? इट इज इक्वल टू इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट tan x डी एक्स. तो बहुत ही क्लियर कट यहाँ दिख रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ tan x इज क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स. तो चलो आगे सब्स्टिट्यूशन का पार्ट. पुट tan x इक्वल टू टी, पुट tan x इक्वल टू टी. So derivative of tan x is sec square x and derivative of t is dt by dx, taking dx on that side. So therefore sec square x into dx equal to dt. So therefore I equals integral 1 upon root t into dt. I equals integral 1 by root t into dt. So what is the integral of 1 upon root t? मैंने फार्मूला लिस्ट में भी डायरेक्टली दिया है, और अगर नहीं समझ में आता तो टी रेज टू माइनस हाफ करके भी ले सकते हो. तो लेकिन डायरेक्टली बाहर रखोगे तो अच्छा है कि इंटीग्रल ऑफ 1/√t dt इज 2√t प्लस c. देयरफॉर I इक्वल टू 2 रूट tan x प्लस c, बिकॉज t इक्वल टू tan x, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है ना यहाँ पर. देखो t इक्वल टू tan x, ये पार्ट को रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं. t इक्वल टू tan ऑफ x. ये जैसे ही सब्स्टिट्यूट कर दोगे रीसब्स्टिट्यूशन, ये अपना फाइनल आंसर रेडी हो जाएगा यहाँ पर. तो देयरफॉर I इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ tan x प्लस c. क्लियर? ओके. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14. लेट I इक्वल टू इंटीग्रल x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. देखो इन द न्यूमरेटर स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, इन द डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये है अपना क्वेश्चन. So for this type of the questions, first we should expand the numerator. So therefore I equal to integral using a minus b whole square formula. So this will be x square plus 1 minus 2x upon x square plus 1 whole square. Denominator को
एक्सपैंड नहीं करना, नेवर एक्सपैंड डिनोमिनेटर। जब तक कोई अर्जेंट नीड ना हो तब तक डिनोमिनेटर को एक्सपैंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आगे देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स एंटायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अगर हम इसको सेपरेट कर दें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन एज वन पार्ट, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन ही है डिनोमिनेटर में, एंड माइनस टू एक्स एज अनदर पार्ट, तो दिस कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ टू इंटीग्रल्स, करेक्ट। ओके, तो देयर फोर आई इक्वल टू इंटीग्रल वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन रिमेनिंग होगा। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, ये टू टाइम्स है और ये वन टाइम है, तो वन टाइम हम लोग कैंसिल करेंगे। तो देयर फोर आई इक्वल टू इंटीग्रल वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, माइनस, ये माइनस साइन एज इट इज रखते हैं, टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर? चलो यहाँ तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं। तो देयर फोर आई इक्वल टू, अब ये तो देखो ये एकदम सिंपल और डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स का। देखो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है, ये होता है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, tan इनवर्स एक्स होगा। तो आई इक्वल टू इंटीग्रल वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, लेकिन सेकंड इंटीग्रल हमारा ये फार्मूले में नहीं जा सकता, ये फार्मूला नहीं है डायरेक्ट इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ समझो सेकंड के लिए केवल, फॉर द सेकंड इंटीग्रल टर्म ओनली पुट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी। यहाँ लिख भी दिया हूँ मैं, फॉर सेकंड इंटीग्रल ओनली, ऐसा नहीं कि इसको फर्स्ट में भी यूज करो, नो नेवर। पुट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी फॉर सेकंड इंटीग्रल ओनली। Therefore, derivative of x square 2x, derivative of 1 is 0, means 2x plus 0 equal to dt by dx आएगा, तो therefore 2x into dx equal to dt, therefore 2x into dx equal to dt। ठीक है, तो ये सिर्फ सेकंड इंटीग्रल के लिए हुआ। अब यहाँ देखो 2x into dx, ये न्यूमरेटर में है, 2x into dx आर प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, तो व्हाट इज इट्स वैल्यू फ्रॉम दिस स्टेप, dt, क्या है इसकी वैल्यू, dt, और हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या एज्यूम किया है, t, तो दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी। सेकंड पार्ट कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, उसके लिए सब्स्टिट्यूशन पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बाद वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी, इसका इंटीग्रल करने के लिए फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू इंटीग्रल टी रेज टू माइनस टू डी टी using integral of x raised to n dx formula, so it is equal to t raised to minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 plus c. So this can be written as t raised to minus 1 only, minus 2 plus 1 is t raised to minus 1 upon minus 1 plus c. So t raised to minus 1 upon minus 1 equal to minus 1 upon t plus c. Now come back on your continue integration, फिर से यहाँ से देखो इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इज टेन इनवर्स एक्स माइनस, अब इसको हमने पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया और एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन है, तो इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी, तो देयर फॉर आई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी इज माइनस वन अपॉन टी, हियर एक्सप्लेनेशन एंड फुल सोल्यूशन इज गिवन, तो माइनस वन अपॉन टी प्लस सी, अब दोनों का मिला करके एक ही कांस्टेंट यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो चाहे तो साथ में इंटीग्रेट करें, चाहे तो एक का इंटीग्रेशन हो गया, दूसरे को यहाँ पर कंटिन्यू सब्स्टिट्यूट करके करते जाएंगे। ठीक है, तो आई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस माइनस ऑफ वन बाई टी प्लस सी, देयरफॉर आई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस एंड वैल्यू ऑफ टी एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, देयरफॉर आई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, ये रहा इसका फाइनल आंसर। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से देख लो, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो फर्स्ट वी एक्सपैंड द न्यूमरेटर, and separate in terms of two integrals, x square plus 1 as one part minus 2x as another part.
तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट यहाँ कर दिया, बोथ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, हियर वन टाइम कैंसिल, रिमेनिंग वन टाइम, ये 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। और उसके लिए सेकंड इंटीग्रल के लिए सब्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रेशन, ये पूरा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया है। तो वी गेट आई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी जस्ट आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट एंड कंटिन्यू प्रैक्टिस। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को सोल्यूशन, एक्सप्लेनेशन एंड फार्मूला जितने भी दिए गए हैं सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।